एक आईईएस ऑफिसर को कैसा होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। व्हाई गेट इज ए सिंगल फेज एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज इज ए 3 स्टेप एग्जाम। कई सिचुएशंस ऐसी आएंगी जब आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ेगा एंड यू विल नॉट हैव इनफ टाइम टू टेक द ऑर्डर फ्रॉम द सीनियर और परमिशन फ्रॉम द सीनियर। प्लीज डू नॉट मेक दोज मिस्टेक्स यू मेड इन सेकंड। Welcome. Yes. Good afternoon, everyone. What is your next plan? This year 2025, what is plan? IES? Yes, sir. Will you be able to do it? Yes, sir. Very good. Who will tell me the requirements of an IES officer? एक IES ऑफिसर को कैसा होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्वालिफिकेशन तो आप जानते हैं, ठीक है, बीटेक, it is just a qualification, but what would be the characteristics of a personality of an IES officer? नहीं पता। आप IES बनने जा रहे हो और आपको ये नहीं पता कि ऑफिसर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। What kind of the personality you should be? प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में ये सिलेबस क्यों है? Why this examination is conducted in 3 phases? Why GATE is a single phase and engineering services is a 3 step exam? कोई तो रीजन होगा। There is reason. So my today's session is going to be on the personality characteristics of an IES officer, requirements of an engineering services examination, and the third part will be strategy for the preparation. I will take around 30 to 35 minutes. We'll try to cover up these things in the brief time. So, personality characteristics of an IES officer. You have to trace the job profile. If you want to understand this question, answer to this question, then you have to trace the job profile of IES. So, engineering services examination which is conducted, this is for the selection of group A and few group B officer, but those officers are technocrats. And the profile is techno-managerial. Techno-managerial का मतलब होता है कि primarily it is a technical, but there will be management skills used. In civil services, the job profile is administrative. In engineering services, job profile is techno-managerial. There is a difference. थोड़ा सा slow करो mic को. Now, your first posting, after the selection and training is complete, your first posting will be assistant executive engineer. तो आपकी जो journey start होगी, that journey will be with the first posting in the post of AEE. Assistant executive engineer is a group A post. And this is the first level. This is L1, level 1. After few years of service, maybe 4 years to 5 years, you will be promoted to executive engineer. Executive engineer is the key position. This is one important benchmark. Executive engineer. Executive engineer का एक ऑफिस होता है. And when you will be executive engineer, जिसको हम एक्सियन बोलते हैं, you will be the head of your office. ये एक्सियन का ऑफिस है. Then the next promotion will be for the post of सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, SE. इसके बाद फिर डिप्टी चीफ इंजीनियर, डिप्टी चीफ इंजीनियर. Sometimes there may be only chief engineer, sometimes deputy chief engineer, then chief engineer. So the next will be chief engineer, CE.
चीफ इंजीनियर के बाद देखिए यहां तक तो सभी लोग पहुंच जाएंगे. So from L1 to L5, this is L2, this is L3, this is L4, this is L5. L1 to L5 तो सभी लोग प्रमोट हो जाते हैं. But beyond L5, those who get selected in early age, 21, 22, 23 year में जिनका selection हो जाता है, and those who have good career remarks, and you have the good fine tuning with your seniors, so you can reach to the next level L6, which is Additional Director General. And the level number 7, which is the last 7, is DG of the department. अब ये जो डेजिग्नेशन है DG, ADG, ये डेजिग्नेशन अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग हो सकता है. कहीं पर लेवल 8, 9 भी हो सकते हैं, कहीं कहीं पर 6 ही होंगे, कहीं पर 7, कहीं पर 8 भी हो सकते हैं. सो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लेवल होते हैं. यहां से प्रमोशन होते 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 यहां पर रिटायरमेंट होता है. नाउ रेलवे में अगर देखोगे तो चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड इज द हाईएस्ट पोजीशन. सीपीडब्ल्यूडी में देखोगे तो डीजी इज द हाईएस्ट पोजीशन. तो इसी तरह से ग्रोथ होता है. व्हेन यू स्टार्ट योर प्रोफाइल, यू विल बी मोर और लेस फोकसिंग ऑन टेक्निकल वर्क. जब आप लेवल 1 पे होते हो तो यू आर मोर फोकस्ड ऑन टेक्निकल जॉब प्रोफाइल, बट स्टिल सम मैनेजमेंट स्किल्स. ग्रेजुअली जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचेंगे टेक्निकल कम होता जाएगा, मैनेजेरियल पोजीशन बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन आती जाएगी. सो मैनेजेरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, और कहीं कहीं पर देयर विल बी मोर ऑन पॉलिसी मेकिंग. सो जॉब प्रोफाइल बढ़ता जाएगा, मतलब चेंज होता जाएगा और ब्रॉड होता जाएगा. यू विल बी एक्सरसाइजिंग मोर स्किल्स एंड यू विल कंट्रोल मोर एरियाज. राइट. नाउ when we are talking the personality characteristics, तो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में, आईएएस ऑफिसर के पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में व्हाट आर दी कैरेक्टर्स, क्या देखता है यूपीएससी? टेक्निकल नॉलेज, एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मटेरियल साइंस एंड सो ऑन, जनरल स्टडीज, राइटिंग स्किल, मेंस, आंसर राइटिंग, स्पीकिंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू. फिर लीडरशिप क्वालिटी, कई जगह आप जब हेड ऑफ द ऑफिस होंगे देयर विल बी लीडरशिप रिक्वायरमेंट. सो लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, कंपैशन, ये सारी चीजें जरूरत पड़ती हैं सर्विस में. तो अगर सर्विस में जरूरत है देन यूपीएससी मस्ट टेस्ट. सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन यूपीएससी विल टेस्ट यू इन ऑल दीज पैरामीटर्स. सो व्हाट आर दी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स? इन पैरामीटर्स को हम यहां पर लिस्ट करते हैं. फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस स्टेज में कौन सा पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक चेक होता है. द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेक्निकल नॉलेज. टेक्निकल नॉलेज. सेकंड इज एप्टीट्यूड स्किल्स. सो सेकंड इज एप्टीट्यूड स्किल. थर्ड इज अवेयरनेस. अवेयरनेस का मतलब हो गया करंट अफेयर्स, सर्टेन जर्नल स्टडी सब्जेक्ट्स which will be tested in prelims. Awareness. Also you can say dynamism. आपकी पर्सनालिटी कितनी डायनामिक है, so that dynamism ये टेस्ट होती है. मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा ये सारे फैक्टर. देन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब ये है राइटिंग एंड स्पीकिंग बोथ. राइटिंग इन मेंस एंड स्पीकिंग इन इंटरव्यू, ये चेक होता है. एंड दिस इज द नीड. देन देयर इज लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन. लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन, दिस विल बी टेस्टेड ड्यूरिंग योर इंटरव्यू. कोऑर्डिनेशन एंड लीडरशिप. Then there is commitment which is needed in your job
and that commitment towards the nation, towards the society, towards your job. So this commitment involves honesty and also involves integrity. Honesty and integrity. Both the things, honesty and integrity. Then the last term I am using here is compassion. Compassion means willingness. Willingness to work, to serve, to support, and nation first approach. Nation first approach. अब मैं आपको इन सारी चीजों को डिस्क्राइब करके बताता हूं कि क्यों यूपीएससी में ये सिलेबस 3 फेजेस में है, क्यों एग्जाम 3 फेजेस में है. दिस इज फ्रॉम हियर टू हियर. आप यहां से सेलेक्ट होकर के इन सर्विसेज में यहां से स्टार्ट करते हैं. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज हायरार्की ऑफ योर जॉब प्रोफाइल. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ऐसे 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 लेवल 7 तक पहुंचते हैं. सो यू आर यूजिंग योर टेक्निकल नॉलेज. देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ डिजाइन, एग्जीक्यूशन, फील्ड वर्क, प्लानिंग. देयर में भी रिसर्च. आप रेलवे में जाओगे तो रेलवे का एक अलग रिसर्च डिपार्टमेंट है, आरडीएसओ. एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विल बी ए हेड ऑफ द ऑफिस. चीफ इंजीनियर विल बी हेड ऑफ द ऑफिस. डीजी विल बी हेad of the entire department of the country. And all these services through engineering services are Government of India service, means the central government. On deputation you may be in state government. CPWD से आप PWD में आ सकते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब से स्टेट गवर्नमेंट में कहीं पर डिपुटेशन में आ सकते हैं. रेलवे से आप MCD में DDA में आ सकते हैं, which belong to the state government, that is on deputation, but your primary and parent organization is central government. During the prelims, इस साल तो prelims के पहले ही फॉर्म भरा लिया गया and detailed application फॉर्म भरा लिया गया. You have given the preference of your department, you have given the hobbies, interest, extracurricular activities, सब कुछ आपने fill कर दिया. Why this year UPSC has asked you to fill all the information beforehand prelims? Last year तक तो prelims के बाद, mains के बाद, interview के पहले भरवाते थे, but इस बार hobbies, interest, preference of department ऐभी भरवा लिए. कोई तो reason होगा. Yes. 2 years back, in the parliament there was a discussion, and this was discussed that UPSC selection process is very time-taking process, especially civil service, and that is not limited to civil service. Engineering service का भी selection लंबा है. तो there was concern of the DOPT कि इस एग्जाम प्रोसेस को कंप्रेस किया जाए, एग्जाम के टाइम को कंप्रेस किया जाए. To compress, it is better to get the form filled once for all these stages, and you are not required to fill again, फिर timeline, फिर last date, फिर admit card. So that is the reason कि this year pre और mains के बीच में gap कम है, right? Last year तक pre और mains के बीच में gap ज़्यादा होता था, लेकिन अब pre और mains के बीच में gap कम हो गया. दूसरा prelims postponed हो गया, उसका भी एक reason है gap कम है. But ये सिर्फ engineering service में नहीं हो रहा. You see the civil services gap between prelims and mains, वहाँ पर भी gap कम हुआ है. So the gap has been reduced. It means कि उस पीरियड में जो टास्क किया जाता था फॉर्म भरने वाला, उसको पहले ही करा लो. So अब यहां पर जब हम देखते हैं तो आपकी जॉब प्रोफाइल अलग अलग तरीके से बढ़ती जाएगी. So कई जगह वर्टिकल कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, कई जगह हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी. वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आई विल एक्सप्लेन यू. In one department you will be required to coordinate with your seniors या take the coordination of juniors. So vertical हो गया ये, senior, junior within the same department, and you are in CPWD, but you have to do nothing with the police, income tax, disaster management or railways.
बट एट टाइम्स कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपको हो सकता है पुलिस की सहायता करनी पड़े या पुलिस से सहायता लेनी पड़े। कभी डिजास्टर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है। जैसे अभी देखिए उत्तराखंड में एक टनल में, सिकियारा टनल में इतने ऑफिसर्स फंस गए थे, तो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट वाले लोगों को भी रेस्क्यू करने के लिए इन्वॉल्व करना पड़ा। सो देयर इज क्रॉस कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। अभी हम बात कर रहे थे पहले वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। आप इसको ऐसे ही समझिए कि ये एक ही बिल्डिंग के अलग अलग लेवल हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, टॉप फ्लोर। So in this building, through this step you can reach to the different level, but through these steps you cannot reach in the adjacent building. तो adjacent building दूसरा डिपार्टमेंट है। तो आप एक बिल्डिंग में एंटर करेंगे, एक डिपार्टमेंट में एंटर करेंगे, वही डिपार्टमेंट आपका पेरेंट डिपार्टमेंट होगा ड्यूरिंग योर एंटायर प्रोफेशनल कैरियर। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिलेक्शन, व्हाटएवर डिपार्टमेंट प्रेफरेंस आपने जो दिया है, that will be allotted on the basis of your rank and you would not be permitted to change. You will not be permitted to change. Right? So once the department is opted, you will not be allowed to change the department. लेकिन डिपुटेशन में आप दूसरे डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं। इसकी मैं अभी प्रक्रिया बताऊंगा आपको। Now, when you will be in these services, जॉब प्रोफाइल डायनेमिक होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अभी इट विल स्टार्ट फ्रॉम टेक्निकल, विल बिकम मोर और लेस नॉन टेक्निकल एट द रिटायरमेंट। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। सो अगर ये सब चीजें आपकी पर्सनालिटी में जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब टेस्ट होना चाहिए इनका। तो जो जो रिक्वायरमेंट सर्विस में आएगी, उनके कुछ ना कुछ पैरामीटर्स एग्जाम में होंगे। And these parameters are either in prelims or mains or interview. So engineering services में जितने भी departments हैं, out of all, the most after sort, the most preference department, या preferable department, that is railways. Why? रेलवे में दो चीजें हैं which are different from the other departments. वैसे तो सभी ही अच्छे हैं, but railway has a better choice. The number one, diversity and a better job profile. Diversity in work. रेलवे में चारों तरह का काम है, प्लानिंग, डिजाइन, एग्जीक्यूशन फील्ड पर या रिसर्च। रेलवे प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन एनी एरिया। जो लोग फील्ड में हैं वो एग्जीक्यूशन करते हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं या रेलवे की लाइन सेटअप कर रहे हैं, लेकिन उसका डिजाइन वो नहीं कर रहे हैं। जो फील्ड में है वो डिजाइन नहीं कर रहे हैं। देयर इज अनदर डिपार्टमेंट ऑफ द डिजाइन। फॉर रेलवे प्रोजेक्ट्स आर बीइंग डिजाइन्ड बाय द अदर डिपार्टमेंट, बट डिजाइन करने के पहले प्लानिंग कोई और कर रहा है, एंड अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ द रेलवे डिपार्टमेंट। तो प्लानिंग हो गया, फिर डिजाइन आ गया, फिर एग्जीक्यूशन आ गया। तीन अलग अलग तो ये वर्क प्रोफाइल्स है। इसके अलावा दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गो इन रिसर्च, तो रेलवे हैज इट्स ओन रिसर्च डिपार्टमेंट, RDSO इज वन ऑफ देम। तो रेलवे के अंदर एक खास बात है कि एक तो डाइवर्सिटी है, एंड व्हेन यू हैव मोर इंटरेक्शन विद पब्लिक या मोर वर्क डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू पब्लिक, जॉब सेटिस्फेक्शन इज मोर। तो रेलवे में जब आप फील्ड ऑफिसर होते हैं, जब फील्ड इंजीनियर होते हैं, उस समय आपके पास वर्क जो करते हैं उसमें पब्लिक से या पब्लिक से के रिप्रेजेंटेटिव से डायरेक्ट इंटरेक्शन का मौका मिलता है। जब आप प्लानिंग में होते हैं तो आप सिर्फ अपने सीनियर जूनियर से इंटरेक्ट करते हैं। तो यहां पर डाइवर्सिटी अच्छी होने की वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छा है। देन पर्क्स, बेनिफिट्स, प्रमोशंस, 7-8 लेवल हैं। सो ये भी एक अलग एडवांटेज है। बट इसके अलावा एक और ऐसा एडवांटेज है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते, वो है डिपुटेशन। इट इज ए ग्रुप ए जॉब। नाउ फ्रॉम रेलवे you may go in deputation in any other ministry. You may go in other अलग अलग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। MCD जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली इज नो लॉन्गर रिलेटेड टू रेलवे, लेकिन बहुत सारे रेलवे के IAS ऑफिसर दे आर इन डिफरेंट पोजीशंस, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और इवन कमिश्नर तक बन सकते हैं। तो ये यहां से जाते हैं। तो दिस इज डेपुटेशन।
आप किसी होम मिनिस्ट्री में, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में, रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट में भी रेलवे से जा सकते हैं। एंड स्टेट गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं आप, पीडब्ल्यूडी में जा सकते हैं, इरिगेशन में जा सकते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जा सकते हैं। देयर इज अ चांस ऑन डिपुटेशन। तो ये जो रेलवे ऑफिसर्स की वर्क प्रोफाइल का जो एक्सपीरियंस है, डाइवर्सिटी का एक्सपीरियंस है, इसकी वजह से दूसरी मिनिस्ट्रीज प्रेफर करते हैं रेलवे ऑफिसर्स को, आपके एक्सपोजर की वजह से। सो एक्सपोजर ऑफ रेलवे गिव्स यू अ डिफरेंट लेवल कि आप वहां पर आपको प्रेफरेंस मिलती है। सो दैट इज व्हाई रेलवे इज मोर प्रेफर्ड अमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स। एज आई टोल्ड यू कि वंस यू हैव एंटर्ड इन वन डिपार्टमेंट, अगर आप रेलवे में हैं तो अंदर ही अंदर प्रमोशन होगा, फिर आप सीपीडब्ल्यूडी में या फिर इरिगेशन में नहीं जा पाएंगे अनलेस एंड अनटिल यू आर इन डिपुटेशन। नाउ व्हेन यू कम टू दीज थिंग्स, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टेस्टिंग ऑफ योर टेक्निकल नॉलेज, जिसमें 2 स्टेजेस हैं, इनफैक्ट 3। प्रीलिम्स में भी टेस्ट होता है, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी टेक्निकल सवाल पूछे जाते हैं। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आर टू टेस्ट योर स्किल्स टू find objectivity about a question. How you eliminate wrong options, how you conclude correct answer, how you maintain accuracy, how you maintain speed. So these skills are tested in objective questions. During the mains examination, you are tested for the descriptive answers. There is limited space given, limited number of words given, fixed time given. You have to answer questions. So you have to be very precise as well as descriptive as well as original in the answer. So you are writing answers according to your own thoughts. तो यहां पर स्कोप होता है कि आप थ्योरी वाले क्वेश्चंस को अलग तरीके से लिखें, आपका दोस्त थ्योरी वाले क्वेश्चंस को अलग तरीके से लिख रहा है। सो दिस राइटिंग ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी डिफरेंट। सो टेक्निकल नॉलेज इज टेस्टेड हियर ऑल्सो इन मेंस। तो यहां पर तीनों स्टेजेस में, प्री में, मेंस में और फिर पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू बोल दीजिए, यहां पर टेस्ट होता है। देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस। तो एप्लीकेशन, यू हैव स्टडीड ओपन चैनल फ्लो, बट हाउ दिस ओपन चैनल फ्लो नॉलेज विल अप्लाई इन द फील्ड, इन द डैम्स और ओवर द कैनाल्स, ये आपको उसके डिजाइन में यूज होगा। वी हैव स्टडीड बर्नौली प्रिंसिपल, but how in our day-to-day life the Bernoulli principle is applied? आपके घर के अप्लायंसेस में, वाटर सप्लाई में बर्नौली प्रिंसिपल को आप कैसे अप्लाई करते हैं? You have to exhibit this knowledge during the interview. During the landsliding, there are several mountains, slopes which fail. How you stabilize those slopes, how you prevent landsliding, how you prevent the disasters, that is an application part of the technical knowledge. Delhi got flooded 2 years back. How this flood could be avoided, then why this flooding happened, you can very well explain with the river training work. So, technical knowledge is tested in all the stages. This is at most requirement of the engineering services examination. Aptitude skill is not limited to the reasoning or mathematics. And why aptitude? There will be decision making skill need. कई situations ऐसी आएंगी जब आपको on the spot decision लेना पड़ेगा. And you may not have enough time to take the order from the senior or permission from the senior. You may not have time. And at time, instantaneously your decision will decide that कि something went wrong or something was prevented from happening wrong. तो आपका डिसीजन वो उस क्षण के डिसीजन पर, उस क्षण के आपके थॉट पर डिपेंड करता है। सो दोज स्टूडेंट्स हु हैव लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल माइंड, कैलकुलेशन, टू अंडरस्टैंड प्रोज एंड कॉन्स, टू सी एंड फोरकास्ट फ्यूचर प्रॉब्लम्स, टू अंडरस्टैंड द वर्स्ट सिनेरियो, आप अगर सारी कैलकुलेशंस विद इन 10 सेकेंड 50 सेकेंड कर सकते हैं, and to arrive into conclusion कि what should be my final action or reaction.
तो वो डिसीजन को लेने के लिए जो एक एनालिटिकल थॉट प्रोसेस चाहिए, जो लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, जो कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड हैं, जो अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड हैं, दो सब्जेक्ट्स आर पार्ट ऑफ एप्टीट्यूड. That is why you study mathematics, that is why you study reasoning, that is why you go for logical questions, mathematical questions, solving numerical calculations. So this has been made part of syllabus even in civil service. Aptitude test है ना, civil service aptitude test. क्योंकि वहां तो IAS बनना है, लेकिन at time उनको जब decision लेना होगा तो बहुत सारे calculations करने पड़ेंगे. So aptitude test is a requirement. This is in prelims. So this part you study in prelims. And that is why it is tested in prelims. Awareness and dynamism. Dynamic personality. Dynamic personality कौन होता है? जिसको सब कुछ पता है, 360 डिग्री नॉलेज होती है, उसको इंडिया यूएफ रिलेशंस पता है, बट साथ ही साथ यूएस इजराइल रिलेशंस भी पता है, कनाडा इंडिया पता है, बट साथ ही साथ कनाडा यूएस रिलेशंस भी पता हो. सो द डायनामिक पर्सनालिटी का मतलब यह है कि if you are given a responsibility to represent the department or to represent the nation in certain forum, you understand the 360 degree scenario. Recently there was election in United States. Trump government is going to take the power. Why the entire world, every country is observing, watching and very eagerly ऑब्जर्विंग कि क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है. भाई 12,000 किलोमीटर दूर हम बैठे हैं, फिर भी हमारे टेलीविजन में गवर्नमेंट ऑफ यूएस का डिस्कशन हो रहा है. उसका रीजन है, व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट विल बी इलेक्टेड, न्यू गवर्नमेंट हैज बीन इलेक्टेड, अब उनकी जो पॉलिसीज है, उनकी जो नीतियां हैं, दोज पॉलिसीज में फेवर इंडिया और में लॉस इंडिया. ठीक है, में cause loss to India, may cause favor to India. For example, अब मैं आपको दोनों चीजें बताता हूं. For example, if the Trump government takes a decision, they will impose more taxes or excise duty on the Chinese goods and services. तो जो चाइना में प्रोडक्शन हो रहा है, मास लेवल पर बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां, इवन यूनाइटेड स्टेट की कंपनियां चाइना में अपना प्लांट लगा के बैठी हैं. दे आर प्रोड्यूसिंग माइक्रोचिप से लेकर के मोबाइल फोन तक, सोलर पैनल तक, इलेक्ट्रिसिटी तक, वायर तक, और मे बी टेलीविजन, एवरीथिंग. अब अगर उन प्रोडक्शंस पर या उन प्रोडक्ट्स पर यूएस गवर्नमेंट 60% ड्यूटीज इंपोज कर देती है, दोज विल बिकम वेरी कॉस्टली. US wants to discourage Chinese goods in US. इसका मतलब है कि the international companies who have their production in China will have fear कि now producing more goods and services in China may result loss in US. And अगर US को फॉलो करके US के जो मित्र देश हैं उन्होंने भी अगर वही पॉलिसी बना ली तो फिर तो और बड़े लेवल पर उनको नुकसान हो सकता है. So indirectly it may help India if India is able to maintain a better relationship with the US. अगर ट्रंप गवर्नमेंट के साथ इंडिया के रिलेशन ज्यादा अच्छे हो जाते हैं तो हो सकता है कि वो जो टैक्सेस चाइनीज गुड्स में लग रहा है इंडिया गुड्स पे ना लगे. अगर ऐसा हुआ, अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा चाइना से हटा लिया तो चाइना के ऊपर अकेले वो टैक्स ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इंडिया को उससे बाहर कर सकते हैं. तो अगर ऐसा हो गया तो जो कंपनियां चाइना में अपने यूनिट लगा रही थी अब वो सोचेंगे कि हम इंडिया में लगा लेते हैं क्योंकि इंडिया में भी चीप पावर अवेलेबल है. नाउ द इंडिया में भी बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस. बट एट द सेम टाइम अगर यूएस सोचता है कि ट्रंप गवर्नमेंट की एक और पॉलिसी थी कि हमारे यहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट हमारे नेशनल सिटीजन्स को मिलना चाहिए, तो दे में कम आउट विद द स्ट्रिक्ट कंस्ट्रेंट्स और रिजर्वेशंस फॉर द H-1B वीजा, जो वर्क वीजा मिलता है. अगर वर्क वीजा में रिस्ट्रिक्शन लगा दिए तो इंडियन प्रोफेशनल्स को, आईटी कंपनीज को नुकसान झेलना पड़ सकता है. राइट, फार्मा कंपनियों को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है क्योंकि ट्रंप सेज कि हमारे यहाँ जो मेडिसिन हैं वो बहुत महंगी है, पब्लिक इज नॉट एबल टू अफोर्ड, दे वांट टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द मेडिसिन. तो प्राइस रिड्यूस करने के लिए
अगर वो प्रेशर डालते हैं तो इंडियन फार्मा कंपनीज सबसे ज्यादा तो यूएस को ही एक्सपोर्ट करती है फार्मा गुड्स, रॉ मटेरियल, तो उनको नुकसान हो सकता है। तो देयर में बी लॉसेस समवेयर, देयर में बी गेन समवेयर। अब हमें यह भी देखना है कि हाउ पॉलिटिकली दिस ट्रंप गवर्नमेंट कैन हेल्प अस। जो सिचुएशन आज बांग्लादेश में है, इट इज बिकॉज ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स प्रीवियस गवर्नमेंट, जो यूनाइटेड स्टेट की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी बाइडेन की, दे हैव प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन डिस्टेबलाइजिंग दी चाइना, सॉरी डिस्टेबलाइजिंग बांग्लादेश। और बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, वो इंडिया के लिए नुकसान कर रहा है। इनडायरेक्टली दे हैव बीन ट्राइंग डिस्टेबलाइजिंग इंडिया। बाइडेन गवर्नमेंट वाज इन फेवर की वो लड़ाई होती रहे, अभी भी उन्होंने हथियार दे दिए कि यूक्रेन को कि लगाओ मिसाइल इंटरनेशनल लेवल पर, बॉर्डर क्रॉस करके भी उनके दागो। बट ट्रंप सेज कि वंस आई टेक द पावर विद इन अ वीक आई विल स्टॉप द वॉर। तो ये बहुत सारे इंपैक्ट है। इसका मतलब क्या है? व्हाई वी स्टडी करंट अफेयर्स? क्योंकि दिस डायनेमिज्म इन योर पर्सनालिटी इज नीडेड। क्योंकि अभी नहीं, लेकिन आगे चल के आप पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा होंगे। उस समय जो पॉलिसीज बननी है उनकी ड्राफ्टिंग आप करेंगे। भले ही पास ये पॉलिसी होगी पार्लियामेंट में, लेकिन उसकी ड्राफ्टिंग होगी वो हायर लेवल के जो हमारे ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं, आईएएस, आईईएस, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, वही रोल प्ले करते हैं। सो दिस ब्यूरोक्रेसी एंड टेक्नोक्रेट्स, दे प्ले ए वेरी क्रूशियल रोल इन फॉर्मुलेटिंग दी पॉलिसीज। पॉलिसी को पास करना गवर्नमेंट का काम है और उसको वापस इंप्लीमेंट करना फिर ब्यूरोक्रेट्स का काम है। सो यू आर सपोज टू लर्न दी करंट अफेयर्स, आईसीटी एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप क्या समझते हो कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है या नहीं है? बहुत अच्छी है। क्या वो फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर है? नहीं है। इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन इज नॉट जज्ड थ्रू द इंग्लिश स्पीकिंग। डू नॉट वरी, डू नॉट बॉदर इफ यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आप मुझे देखो, मुझे टूटी फूटी अंग्रेजी आती है, और वो भी 20 साल बाद। 20 साल पहले आप सोच सकते हैं इससे भी खराब रही होगी। सो व्हेन यू फेस द इंटरव्यू, इट इज नॉट द इंग्लिश विच इज टेस्टेड, it is the personality which is tested. That is why it is called personality test. Personality test mein communication has a very important role, but that communication doesn't mean English speaking. So English ko thoda sa alag rakhiye. There are people who come from farming background, rural background, they get very good marks. How? आप देखिए इस साल के टॉपर हैं, रैंक 1 सिविल इंजीनियरिंग is from a village from Nanded, Maharashtra. Rank 2 का तो आपने सेशन किया ही है। He comes from उत्तराखंड, राइट? छोटी छोटी जगह से आए हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके आए हैं। रैंक 1 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज अगेन फ्रॉम उत्तराखंड। और छोटे से कॉलेज, टेक्निकल यूनिवर्सिटी पिथौरागढ़ से वो फर्स्ट रैंक है। ये पंतनगर से पढ़ के आए थे, सेकंड रैंकर। प्राइवेट कॉलेज से आ रहे हैं, रैंक 1 ला रहे हैं, गांव के रहने वाले हैं। They can't speak fluently English. It means English is not a factor. So communication होना जरूरी है, क्योंकि when you will be in service, you will command your team. You will lead your team. You have to motivate, you have to train, you have to give instruction, but you should be able to instruct the way you want. तो कम्युनिकेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंग्लिश अच्छी हो। कम्युनिकेशन का मतलब है जो आप कहना चाहते हैं वो अपनी भाषा में, अच्छी लैंग्वेज में कह सके। सो दैट इज व्हाट द प्रधानमंत्री जी डज। यूनाइटेड नेशन में भी वो भाषण देते हैं तो हिंदी में देते हैं कि द वे ही कैन स्पीक एंड दैट इज ओरिजिनल, ही इज एबल टू कम्युनिकेट। तो इसलिए आप यूपीएससी में इंटरव्यू जब देने जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हो या नहीं बोलते हो। फर्क ये पड़ता है कि जो पूछा गया है वो आंसर करते हो और अच्छी भाषा में करते हो, और आपके टेक्निकली आंसर्स बहुत अच्छे हैं इफ दिस इज अ टेक्निकल क्वेश्चन। प्लस व्हेन यू आर राइटिंग द मेंस एग्जामिनेशन, यू आंसर व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड, डोंट आंसर व्हाट यू नो। मोस्ट ऑफ द टाइम इन इंटरव्यू व्हाट हैपेंस,
हम वही बोलते हैं जो हमें आता है, हम ये सोचते ही नहीं है कि हमसे पूछा गया है क्या नहीं। इफ आई आस्क यू कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौली प्रिंसिपल, और आप बता रहे हैं स्टेटमेंट व्हाट इज बर्नौली प्रिंसिपल, देयर इज अ डिफरेंस। आपसे ये मैंने पूछा ही नहीं है कि बर्नौली प्रिंसिपल क्या है, मैंने तो पूछा है उसका एप्लीकेशन क्या है। व्हाई यू आर टेलिंग मी द इक्वेशन, राइट? तो आपको वही चीज आंसर करनी है, चाहे रिटन एग्जाम हो चाहे इंटरव्यू हो, जो चीज पूछी गई है। प्लस अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या उसकी वेटेज है, 10 नंबर का है, 15 नंबर का है, या 5 मार्क्स का है। सो योर डेप्थ ऑफ द आंसर विल डिपेंड ऑन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। कभी कभी आपको बर्नौली प्रिंसिपल में सिर्फ पॉइंट्स लिख करके काम चल जाएगा, एप्लीकेशन, कभी कभी एप्लीकेशन डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इफ इट इज 5 मार्क्स क्वेश्चन, ओनली पॉइंट विल वर्क। सो द डेप्थ ऑफ आंसर विल डिपेंड ऑन इट्स वेटेज। Somewhere you can go paragraphic, somewhere you can go tabular, somewhere you can go point wise, somewhere you can go pictographic. आप जा सकते हैं। मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया, because I don't want to write more but I want to explain more. So the pictographic approach can work if there is something which can be depicted through a diagram. But अगर मैं पूछ लूं discuss the impact of the Russia-Ukraine war on the India, तो आप इसको डायग्राम से कैसे दिखाओगे? यहां तो डिस्कस करने पड़ेगा ना, तो पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। So when it is discuss, when it is describe, you have to go paragraphic. When it is enumerate, when you compare, you can go tabular, you can go point wise. So you have to understand. तो कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि हम कैसे लिखते हैं, कैसी लैंग्वेज में लिखते हैं, एक्यूरेसी अच्छी हो, लैंग्वेज हमारी सही हो, एप्रोप्रिएट हो, जो पूछा गया है वो आंसर करें। इंटरव्यू में भी जो आपसे पूछा गया है, आंसर्स शुड बी रिलेवेंट, आंसर्स शुड बी एक्यूरेट, आंसर्स शुड नॉट बी वेग, शुड नॉट ब्लफ, शुड नॉट बी फॉल्स। इट इज द लैंग्वेज, राइट? सो द कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द मेंस एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो इनका जो टेस्ट होता है, ये मेंस में टेस्ट होता है और ये पर्सनालिटी टेस्ट में टेस्ट होता है, राइट? So means and personality test. Leadership, as I told, when you are in any position like executive engineer, like chief engineer या DG, ये 3 ऐसी पोस्ट हैं, एक बिगिनिंग की फेज में आती है, एक मिडिल फेज में आती है, एक रिटायरमेंट की फेज में आती है, जब आप हेड ऑफ द ऑफिस होते हैं। अंडर सच सिचुएशन यू आर द होल एंड सोल ऑफ योर डिपार्टमेंट एट दैट टाइम। तो वहां पर आपकी लीडरशिप स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। किसी भी डिपार्टमेंट का जो हाईएस्ट पर्सन है, उसकी पर्सनालिटी लैंग्वेज ही दूसरे के लिए फॉलो अप पार्ट बनती है। तो आपकी लीडरशिप स्किल्स भी टेस्ट होती हैं। एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि इसका टेस्ट कहां होता है, प्रीलिम्स में कौन सा सवाल है, मेंस में क्या है, नहीं है, इंटरव्यू में है। During your personality test, why they are asking hobbies, interest, extracurricular activities, why they are asking hometown, job profile, previous experience, क्या relevance है इसका? इससे तो technical knowledge नहीं निकलेगा, इससे aptitude भी नहीं निकलेगा। Then why they are asking hobbies, extracurricular activities, personality characteristics, features? क्योंकि इन सवालों से आपकी unique personality बाहर आएगी। बर्नौली प्रिंसिपल का आंसर सारे लोग सेम देंगे, हुक्स लॉ की डेफिनेशन सब लोग सेम बताएंगे, बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन एंड डायग्राम एवरीवन विल गिव सेम, बट व्हेन आई आस्क यू टेल समथिंग अबाउट योर होम टाउन, एवरी आंसर विल बी डिफरेंट। टेल समथिंग अबाउट योर फ्यूचर एम एंड व्हाट डू यू वांट टू डू इन द लाइफ, एवरीवन विल गिव द डिफरेंट आंसर। सो दिस यूनिकनेस कम्स थ्रू द पर्सनालिटी, दिस कम्स थ्रू द पर्सनालिटी टेस्ट। तो इस पर्सनालिटी टेस्ट में आपकी लीडरशिप भी टेस्ट होती है और उस लीडरशिप को अलग अलग तरीके से जज किया जाता है। अगर आपने अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है आई वाज द कैप्टन ऑफ माय बास्केटबॉल टीम ड्यूरिंग माय कॉलेज, तो वो जो बास्केटबॉल टीम का कैप्टन थे, दैट कैप्टेंसी पोजीशन इज अ लीडरशिप पोजीशन। अब उस पर वो 2 सवाल पूछ लेंगे कि आप जब कैप्टन थे तो आपने क्या किया, आपने कितने टूर्नामेंट्स जीते, नहीं जीते तो उस समय आप करते क्या थे, व्हाट वाज योर रोल। वहां से वो पता लग जाएगा कि आपने सही लिखा, गलत लिखा, आपके अंदर है वो पर्सनालिटी कैरेक्टर नहीं है। सो दीज थिंग्स कैन बी टेस्टेड ड्यूरिंग द पर्सनालिटी टेस्ट। एज आई टोल्ड यू, ऑनेस्टी,
हर सिविल सर्वेंट में ऑनेस्टी होना नितांत आवश्यक है, ये मान के चला जाता है। ऑनेस्ट होते हैं ना सिविल सर्वेंट और इंजीनियरिंग सर्वेंट? होते हैं ना? कॉन्फिडेंट हो? यस, अभी तो होना ही चाहिए। ऑनेस्टी को जज करने का फॉर्मूला आज तक बना नहीं है, उस समय के अनुसार बदलता रहता है। पीपल आर ऑनेस्ट, दे बिकम डिसऑनेस्ट विद टाइम, दे बिकम मोर ऑनेस्ट विद टाइम। तो दोनों तरह के लोग हैं, बट ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब है कि देश के लिए माई कमिटमेंट टू माई कंट्री इज फर्स्ट। कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट डू एनीथिंग विच कैन हार्म to the image of the country, which can make loss to the image of the nation. I will not do and I am not allowed to do. So you are bounded within the boundary of the constitution. Every work you will do, it will be within the constitutional boundaries. There is law, you cannot afford to do something beyond the law and boundary. सो इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी इज इनहेरेंट क्वालिटी है, ऐसा मान के चला जाता है, डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, ये जब आपके कैरेक्टर में होना ही चाहिए और होगा भी, राइट? तो इसको हम ना डिस्कस नहीं करते। दिस इज टेस्टेड ड्यूरिंग पर्सनालिटी टेस्ट। नाउ विलिंगनेस एंड नेशन फर्स्ट, कंपैशन। व्हाई आई एम हियर टू टॉक टू यू? इज इट द पार्ट ऑफ द मेड एजी करिकुलम? नहीं था, but I have taken 3 hours today time to talk in each batch because I am compassionate teacher. I like to teach. I resigned from engineering services and adopted teaching. It is my personal interest. बालक सो रहे हो? सो रहे हो? आपको पूछ रहा हूं, ये सोच रहे हो? नहीं, आपके आगे। हाँ, आपसे सो रहे हो या ये सोच रहे हो? डस्टर तो नहीं है, ये भी बहुत तेज लगता है, किसी पर भी आ सकता है, ऐसे जागते रहना। सो आई वॉज जस्ट एक्सप्लेनिंग द कंपैशन। कंपैशन का मतलब है विलिंगनेस। मैंने लिखा ना, विलिंगनेस। 2-3 तरह के एटीट्यूड होते हैं लोगों में। आप अपने डिपार्टमेंट में किसी पोजीशन पर हैं और आपको कोई टास्क दिया गया सीनियर के द्वारा, आप बोलते कर देंगे सर, हो जाएगा सर। कब हो जाएगा सर? देखते हैं कल परसों जब टाइम मिलेगा। 3 दिन निकल के सीनियर पूछ रहा, हुआ सर? अभी कर देंगे, बस 2 दिन में हो जाएगा। करे जा रहे हैं, अब वो बोलेगा कल तक नहीं आया, यू विल बी टर्मिनेटेड। रात में करो, आज कल लास्ट डेट है, डेडलाइन है। यू आर नॉट कंपैशनेट। प्रेशर क्यों कर रहे हो? अंडर प्रेशर करना है, नहीं करेंगे तो नौकरी से सस्पेंड कर दिए जाएंगे। दूसरा ऑफिसर क्या है, वर्क आया तो सीनियर से पूछा कि सर कब तक जमा करना है? मंडे। तो उसने क्या करा, अपना काम कर लिया और मंडे को जाके जमा कर दिया। थर्ड, वर्क आया, सीनियर से नहीं पूछा और वो 2 दिन का हो सकता था, 2 दिन में जमा कर दिया। मंडे अभी 5 दिन बचे हुए हैं। ही इज ए कंपैशनेट ऑफिसर, ही इज प्रोएक्टिव, फिनिश द टास्क। डेडलाइन बची हुई है, बट व्हाई टू वेट फॉर डेडलाइन? एंड willingness to do work, willingness to do work, willingness to help people, willingness to serve society, willingness to lift the image of country. This is compassion. तो civil servants and engineering servants who are group A officer, we expect they are compassionate. This is the need of the personality, compassionate. अब मैं यहां का एक और एग्जाम्पल बताता हूं आपको कि फॉर एग्जाम्पल you are in railways and in certain stretch derailment हो गया। derailment समझते हैं ना, एक्सीडेंट हो गया या ट्रेन पटरी से उतर गई। derailment has resulted in accident. This accident resulted certain loss of the life
and there are certain very severely injured people, and many people are now affected. But you as a in charge chief engineer or maybe DRM of the area of that line, and along with the district magistrate, it becomes pura administration, you have limited resources. ऐसी जगह एक्सीडेंट हुआ कि जहां से ना तो दूसरी ट्रेन है या बस जा सकती ना ट्रेन आ सकती, क्योंकि वो जंगल में है. नींद आ रही है? नहीं. सो दिस इज एन एक्सीडेंट. अब क्या करें? तो आप लोगों ने अरेंज किया, कुछ एम्बुलेंस लाए, 10 एम्बुलेंस मिली, और कितने इंजर्ड हैं, सीवियरली इंजर्ड 50 लोग. बट ओनली 10 पीपल कैन बी सेंट. एक एम्बुलेंस में एक को लेके जाएंगे. अब क्या करें? तो वहां पर फिर यह देखा जाएगा हु इज मोर सीरियस, हु इज मोर सीवियरली इंजर्ड, हु इज मोस्ट नीडी, ओल्ड एज, चिल्ड्रन, विमेन एंड देन द यंग. तो देयर इज मतलब सीनियर सिटीजन, यंग एंड चिल्ड्रन, देन दी विमेन एंड देन दी यंग. तो ये प्रायोरिटी सेट हुई कि नहीं हुई कि पहले इनको भेजो, फिर उनको भेजो, फिर उनको. कुछ लोग ऐसे होंगे कि भले ही क्रिटिकल हैं लेकिन उनके पेरेंट आ गए साथ में, उनके ब्रदर आ गए और अपनी कार ले आए, तो प्रशासन बोलेगा यार इसको तुम ले जाओ, आई कैन यूज दिस माई रिसोर्सेज टू सेंड दी अदर नीडी पीपल हु आर मोस्ट नीडी. क्या लॉ ये कहता है कि बच्चों को बाद में पहले भेजो या सीनियर को पहले भेजो? लॉ तो नहीं कहता ना. राइट टू इक्वलिटी है ना. आप लड़ाई कर सकते हो ना कि कहां लिखा है कि मुझे आप बाद में भेजोगे, आप उनको पहले भेजोगे, आप उनको पहले क्यों भेज रहे हो, कह सकते हो. लेकिन नहीं. एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए इंजीनियरिंग सर्वेंट, आपका ये कैरेक्टर होना चाहिए कि यू शुड हेल्प दी मोस्ट नीडी पर्सन फर्स्ट, मोस्ट अफेक्टेड पर्सन फर्स्ट. अमीर और गरीब में संविधान तो नहीं कहता कि अंतर करो, कोई पॉलिसी बनी और सबके लिए है, राइट. मान लीजिए कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन होना है और एक सेट ऑफ क्लास के लिए है और सब इसमें एलिजिबल है, तो उसमें जो बहुत गरीब है, एक बेचारी ओल्ड लेडी है, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि पहले उसको बुलाओ और उसको बोलो कि माता जी आप ले जाओ पहले. क्यों? क्योंकि सी कैन नॉट स्टैंड मेंटली एंड फिजिकली, सी इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. बाकी 2 लोग 2 घंटे खड़े रह लेंगे लाइन में, वो नहीं खड़ी हो सकती. सो दिस इज कॉल्ड कंपैशन, कि भले ही हमारा संविधान या लॉ हमें नहीं कहता डिस्क्रिमिनेशन के लिए, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पहले उसको हेल्प कर दें जो ज्यादा आपके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब सिस्टम के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है. दिस इज कॉल्ड विलिंगनेस टू हेल्प द नीडी पीपल फर्स्ट, कंपैशनेट अप्रोच, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र फर्स्ट, राइट. हम सोचेंगे कि यार 2 काम है, एक ये है जो हमारे इंडिया को हेल्प कर सकता है, एक ये है जो मुझे हेल्प कर सकता है. देन माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज टू नेशन. आप ये मत सोचो कि मुझे हेल्प होगी तो देश को तो अपने आप हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है. सो नेशन फर्स्ट, राइट. तो ये भी पर्सनालिटी टेस्ट में टेस्ट किए जाते हैं. अब ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी तो आपका प्रीलिम्स में भी टेस्ट हो जाता है, एथिक्स सेक्शन है ना, तो एथिक्स में भी टेस्ट हो जाता है. ये वो बात अलग है कि आप रट के जाते हो, पढ़ के नहीं जाते हो. नाउ आप बताइए, क्या ये सब कुछ प्री मेंस इंटरव्यू में अलग अलग जगह पूछा जाता है इसलिए 3 पेजेस जरूरत नहीं है? आप अगर रिटन एग्जामिनेशन नहीं हो तो आंसर राइटिंग कैसे चेक होगी, और इंटरव्यू नहीं हो तो आपकी ये सारे फीचर्स कैसे चेक होंगे, एप्टीट्यूड स्किल कैसे चेक होगा अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हो, स्पीड कैसे चेक होगी अगर प्रीलिम्स नहीं हो. सो द डिजाइन ऑफ द सिलेबस ऑफ द इंजीनियरिंग सर्विसेज इज वेरी थॉटफुल. 3 स्टेजेस. सिंस टाइम थोड़ा लंबा लगता है इसको कंप्रेस करने के लिए, जो यूपीएससी ने अभी इनिशिएटिव लिया है टू गेट द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड बिफोर द प्रीलिम्स इटसेल्फ, इट इज टू कंप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन. दूसरा, इस बार के लिए एक और कारण भी था कि प्रीलिम्स गॉट डिलेड, दे हैव टू कंप्लीट द साइकिल ऑन टाइम, तो उसका भी एक कारण हो सकता है. I also want to tell you one thing कि since last 24 years, 2001 में मेरा पहली बार सिलेक्शन हुआ था IAS में, right? What is my credentials? Engineering Services 2001, ऑल इंडिया रैंक 72 था, मुझे BRO मिला था. इंजीनियरिंग सर्विसेज 2002,
ऑल इंडिया रैंक 12 था, और इंजीनियरिंग सर्विसेज 2003 ऑल इंडिया रैंक 11 था। और मुझे सिविल सर्विसेज भी लिखना था, मेरी प्रेफरेंस थी सीपीडब्ल्यूडी, तो मैंने सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज इधर भी लिया था, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस, और इधर भी लिया था, इधर बीआरओ मिला था। I joined the job, worked for 1 year. After completing training, then I took the decision to continue teaching. And this is the time when I started teaching after my first selection. तो 24 साल से मैं देख रहा हूँ इंजीनियरिंग सर्विसेज के स्टूडेंट्स यहाँ से बहुत सारे सेलेक्ट होके गए, नेक्स्ट ईयर से सिविल सर्विसेज के बहुत सारे सेलेक्ट होके गए। आई हैव वेरी हाई रिगार्ड टू द यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस, वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी ऑनेस्ट। इफ यू आर ए डिजर्विंग कैंडिडेट यू विल गेट ए गुड मार्क्स। आपको इंग्लिश नहीं बोलना आती, आप उनसे परमिशन ले लो, वो इनकरेज करेंगे, आप हिंदी में आप बता दो। इफ योर आंसर्स आर गुड, योर फैक्ट्स आर करेक्ट, यू विल गेट गुड मार्क्स। बट इफ यू ट्राई टू ब्लफ, यू मेक देम फूल, इफ यू थिंक दैट दे आर ओल्ड पीपल एंड वी कैन इनको बुद्धू बना सकते हैं, तो यू नो दैट वो तुम्हारे बाप से भी ज्यादा उम्र के हैं। सो दे आर स्ट्रॉन्ग। सो यूपीएससी इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वेरी रिस्पेक्टफुल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही। इसलिए कोई भी दिमाग में ये कभी भी क्वेश्चन नहीं लाना कि कोई सिलेक्शन का कोई देयर कैन बी अ शॉर्टकट मेथड, देयर इज नो शॉर्टकट मेथड। सो जस्ट फॉलो द प्रोसेस व्हिच कैन हेल्प यू। सो दिस इज जस्ट समथिंग बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्ट, इट इज नॉट रिलेटेड टू एग्जाम। नाउ कमिंग टू द लास्ट 3 months which are left, right? What to be done for GATE? So strategy, what strategy you can follow? एक तो गेट के लिए 2.5 महीने बचे हैं, सो 75 days यू आर लेफ्ट फॉर द गेट, और कम है, इतना तो बचा हुआ है। 15 फरवरी को एग्जाम है, 15-16 को, एंड गेट के बाद आफ्टर गेट देन दिस इज ऑन 15th of February, 16th है गेट सिविल का, ठीक है, 16 February 2025। देन what about the ESE prelims? Yes, ESE prelims is on 8th of June. 8th of June. And when is the mains? ESE mains. 10th of August? ESE mains, 10th of August. अब हमारे पास ये 3 टाइमलाइन है, 10th August. These are the 3 timelines: mains, prelims and gate. So let us divide these 3 timelines in 3 different strategies. We have sufficient time for the gate now, but more important, you have more sufficient time after gate for prelims. आप लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखोगे तो सफिशिएंट है, नहीं पढ़ना है तो कभी भी सफिशिएंट नहीं है। 75 डेज पर फोकस करते हैं अभी। द गुड थिंग फॉर सिविल इज दैट सिलेबस इज सेम फॉर टेक्निकल। गेट ईएस का सिलेबस सेम है। Had it been mechanical, had it been electrical, had it been electronics, तो सिलेबस में टेक्निकल एक्स्ट्रा भी है, बट सिविल में 95% थिंग्स आर सेम, बट देयर इज डिफरेंस इन लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस। सो 75 डेज को पहले प्लान करते हैं हम। गेट इज कॉल्ड द गेटवे फॉर इंजीनियर्स। यू गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज थ्रू द गेट रैंक, पब्लिक सेक्टर ओपनिंग्स, एमटेक ओपनिंग्स, पीएचडी ओपनिंग्स, इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, एमटेक प्लस पीएचडी। इवन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहते हैं वहां भी ओपनिंग्स हैं, एंड इवन सम स्टेट गवर्नमेंट्स दे आर रिक्रूटिंग ऑन द बेसिस ऑफ द गेट रैंक, दे गिव द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन इंटरव्यू डायरेक्टली। सो गेट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो वन शुड टेक इट लाइटली, राइट? एंड इफ यू प्रिपेयर फॉर गेट इट ऑटोमेटिकली हेल्प्स इन द ईएससी, क्योंकि पूरा सिलेबस गेट का ईएससी का पार्ट है, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे एनीथिंग is the part of that, except English. So, gate strategy, 75 days hai. So, in this 75 days, you have to just follow 4 things. One is syllabus, and this syllabus can be, I can say that there can be 2 approaches. One for those who have studied complete syllabus, another for those जो अभी तक मान रहे थे मेरा तो होना नहीं है, इस बार तो नहीं होना है,
पढ़ा ही नहीं है, लेट स्टार्ट किया, रिवीजन नहीं करा था, अभी तक तो सोच रहे थे कि नहीं होना है, तो उनके लिए ना थोड़ा अलग अप्रोच है, लेट अस टेक ए चांस एंड इट मे फिट। तो होलिस्टिक अप्रोच एंड सेलेक्टिव अप्रोच, राइट, होलिस्टिक अप्रोच एंड सेलेक्टिव अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच उनके लिए जो पूरा पढ़े हैं, सेलेक्टिव उनके लिए जो अभी थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं है। 80% लोगों की बात कर रहा हूं। आप अपने सिलेबस को, जो लोग सेलेक्टिव हैं, जो कॉन्फिडेंट नहीं है, आप अपने सिलेबस को 3 कैटेगरी में थोड़ा डिवाइड कर दीजिए। 3 कैटेगरी कौन सी हैं? पहली कैटेगरी वो जहां से ज्यादा सवाल आते हैं, दूसरी वो जहां से आते हैं बहुत ज्यादा इंटेंसिटी नहीं है, थर्ड वो जो लो इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट वो। अब एक तो सब्जेक्ट का डिवीजन हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट जाता हूं। डू नॉट लीव कंप्लीट सब्जेक्ट एज ए होल, बट विद इन सब्जेक्ट यू कैन डिवाइड द टॉपिक्स इन 3 पार्ट। अब जैसे स्टील स्ट्रक्चर है, आरसीसी स्ट्रक्चर है, ये सॉइल मैकेनिक्स है, हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत कम पूछे जाते हैं। स्टील में देखोगे तो प्लेट गर्डर्स हो, गैंट्री गर्डर्स हो, या कॉलम डिजाइन हो, कम क्वेश्चंस मिलेंगे, बट रिविटिंग, वेल्डिंग के क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे। सॉइल मैकेनिक्स में आप देखोगे तो बेसिक्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स है, जैसे सीआरए स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है, कंप्रेसिबिलिटी, कंसोलिडेशन, बहुत सवाल मिलेंगे। But when it comes to the soil exploration, when it comes to the application part, या फिर ब्रिज डिजाइन, नहीं मिलेंगे सवाल गेट में, कम मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप आरसीसी में देख लोगे तो फुटिंग डिजाइन की हो सकता है कम मिले। तो आप क्या करो कि प्रीवियस ईयर गेट के सवाल पे जाओ, एंड द गुड थिंग इज दैट मेडी जी की बुकलेट में चैप्टर वाइज दे रखा है। तो 5 साल, लास्ट 5 ईयर्स, नो नीड टू गो फॉर 10-15 ईयर, लास्ट 5 ईयर्स में देखो कि 5 साल में ज्यादा सवाल कहां से आ रहे हैं, किन टॉपिक्स में सवाल कम आए हुए हैं 5-6 साल में, 8 साल में। उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो जो जिनकी इंटेंसिटी ज्यादा है, जिनमें रिपीटिशंस ज्यादा है, और उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, सेकेंड लेवल पे एवरेज। और इनको अभी फिलहाल हम देखते हैं, टाइम बचेगा तो आएंगे, बाकी के टॉपिक पे नहीं बचेगा तो नहीं आएंगे। ठीक है, ये उनके लिए है जिनके पास टाइम बहुत कम है, लेकिन जिनके पास टाइम है, जिन्होंने पहले से पढ़ा है, उनको तो सभी में पूरा टाइम देना है। सो आई हैव गिवन जस्ट द आइडिया कि आप कैसे इस पे जा सकते हो। तो सिलेबस में जो नोट्स आपने पढ़े हैं, लिखे हैं, क्लास में अटेंड की है, वो नोट सफिशिएंट है। यू डू नॉट रिक्वायर टू रीड द टेक्स्ट बुक एट लास्ट स्टेज। टेक्स्ट बुक पढ़ने का टाइम होता है पहले, शुरू में, जून में, मई में, अप्रैल में, मार्च में, या फिर अगस्त तक। बस अगस्त सितंबर के बाद किताब की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, रिवीजन। तो अब टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड बिलीव कि आपके क्लास नोट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं, एंड ट्रस्ट ऑन देम। इट इज माय कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कि आप बहुत अच्छे से करके जाओगे, प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओगे, रिवीजन करके जाओगे, तो आप अटेम्प्ट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जितने भी टॉप रैंकर्स हैं उनकी जरा टॉप स्टॉक देखिए, कोई भी फैब्रिकेशन नहीं है, एक भी फैब्रिकेशन नहीं है। Whatever they have spoken, that is fact to their self understanding। और जितना भी मेडी जी का रिजल्ट है, which shows, आपने देखा आईएएस में रैंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, all first 8 are classroom students, 9th is test series and IGP, and 10th is online course student। मतलब 10 में से 9 फाउंडेशन कोर्स के बच्चे हैं, और उसमें से मेजॉरिटी वो हैं जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स करा, टेस्ट सीरीज दी, मेंस कोर्स करा, इंटरव्यू करा, और एक ही साल या 2 साल में क्रैक कर डाला। If they have done it, you can do it। कोई ऐसा तो है नहीं कि लास्ट ईयर अलग पैटर्न था, इस बार अलग पैटर्न है, और पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि तुक्का इस बार लग गया, एक ब्रांच में लग जाता, दूसरे में क्या होगा, दूसरे में लग जाता, टॉप 100 में क्या होगा। आप देखिए ओवरऑल भी सिलेक्शंस बहुत हाई है नेक्स्ट मेडी जी के सिलेक्शंस बहुत ज्यादा क्लासरूम से आए हैं। सो क्लासरूम कोर्स एंड दी ऑनलाइन कोर्स की जो स्टूडेंट है वही डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि व्हाट दे हैव डन, उन्होंने, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, व्हाट दे हैव डन, स्ट्रैटेजी को थोड़ा हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं।
3 पार्ट में अभी हमने बात की, और उन तीनों पार्ट की हम डिटेल में जो डिस्कशन कर रहे हैं, आई कैन जस्ट एक्सप्लेन हियर। स्ट्रैटेजी, अभी हम ग्रेड की बात कर रहे हैं, दिस इज 75 डेज। तो सिलेबस कवर्ड, क्या हो गया, मुझे लग रहा है क्या गलत कर रहा हूं मैं, है? आप बताओ, आप लोग बैठे हुए हो और इतनी देर से कुछ देख नहीं रहे हो यार, यही तो है, किसी गलती को देख करके पचा जाना, यही तो इंटीग्रिटी का सवाल है। आप हाथ उठाओ कि सर ये क्या लिखा है, गलत लिखा है, नहीं बता रहे हो, बताओ, मुझे लग रहा है मैं कहां गलत कर गया हूं, कुछ तो गड़बड़ है? राइट? तो चल जाते हैं, ठीक है। सिलेबस में मैंने बताया आपको, यहां पर सिलेबस को क्या करना है, यस, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरेज, लो इंपॉर्टेंट। और अगर आपके पास समय कम है तो इन पर फोकस करिए, और समय सफिशिएंट है तो इस पर भी जाइए, ठीक है, टेक योर कॉल। सेकेंड इज PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही लॉजिकली करना है, दे आर द मिरर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। यहां से शीशा देख के जाओगे, जैसा दिखोगे आप वैसा ही वहां होगा। इट इज अ मिरर, टेस्ट सीरीज इज अ मिरर। तो इस मिरर को क्या करना है आपको, PYQ को, इसको अटेम्प्ट करना है थोड़ा ट्रिकी तरीके से। सब्जेक्ट वाइज करते हो या पेपर वाइज? सब्जेक्ट वाइज, नॉट कि 2023 का पेपर फिर 22 का फिर 21 का, ऐसे तो नहीं कर रहे, सब्जेक्ट वाइज करते हैं, ठीक है, ठीक है। सो लेट अस टेक, यू स्टार्ट विद द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, any subject, pick up, and you want to attempt from 2010 to 2024, ये आपको 15 साल के पेपर अटेम्प्ट करना है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। ऑन एन एवरेज 5 से 6 सवाल आते हैं एक साल, एक सब्जेक्ट में। 65 तो टोटल ही है, 5 सवाल मान लो, 15 में 75 क्वेश्चंस हो गए। 75 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, दैट मे बी द रेंज। तो 75 to 80 क्वेश्चंस को करने में कितना टाइम लगना चाहिए? 65 क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं, 3 घंटे मिलते हैं, तो 80 क्वेश्चन में 4 घंटे मान लो। हम मान के चलते हैं कि 4 to 5 आवर्स में इसको करना है, 4 to 5 आवर्स में करना है। पूरा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के PYQ 4-5 घंटे में पिछले 10 से 15 साल के लगाने हैं। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट कर लो, गेट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से टाइम निकालो, कितने घंटे में करना है, फिक्स करा, चलो बैठ जाते हैं। आज 2.5 घंटे का स्लॉट, कल 2.5 घंटे का स्लॉट। PYQ अटेम्प्ट करिए। अब मैंने यहां पर बोला अटेम्प्ट, नॉट रीडिंग। PYQ रीडिंग के लिए नहीं है, अटेम्प्ट के लिए है, तो अटेम्प्ट करना है। अब देखो, रिवीजन जो यहां पर आप करोगे, ये 2 तरीके से होता है, या तो रिवीजन करके PYQ करो, या PYQ करने के बाद रिवीजन करो। जो नहीं बने वो रिवीजन में चले जाओ। अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग अप्रोच है। तो दिस कैन बी दिस साइकिल, दिस कैन बी दिस साइकिल, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप इसमें पहले आते हो, इसमें पहले जाते हो। नाउ आप PYQ में अटेम्प्ट करा, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। डोंट सी ऑन द सॉल्यूशंस एंड डोंट सी द आंसर्स, सॉल्व कर दो जैसे क्वेश्चन पेपर करते हैं। हो गए? नाउ यू चेक योर आंसर्स, जो सही है सही है सही है, करेक्ट। जहां पर आप गलत थे, whatever mistake you have done, and some will be unattempted, तो जहां मिस्टेक की है और जो अनअटेम्प्टेड है, द सेकेंड राउंड इज दैट, वो टाइम 4-5 घंटे के बाद है, वो दोबारा टाइम। हम एग्जाम अप्रोच में पहले चले गए, अब हम नॉन एग्जाम अप्रोच में जा रहे हैं। सो सेकेंड राउंड में you attempt those questions which you made mistake or which you have not attempted, right? जिनमें मिस्टेक करा या जो अटेम्प्ट नहीं कर पाए,
उनको सेकंड राउंड में करेंगे. सो फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू डू, क्योंकि आप ज्यादा सोच के करेंगे. कोई इसमें सिली मिस्टेक कर दी थी, किसी में एरर कर दी थी, किसी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था, किसी में मिस रीडिंग कर दी थी, करा. बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस में कुछ क्वेश्चन सही हो जाएंगे. बट यू हैव डन सम मिस्टेक, दैट इज व्हाई यू मेड मिस्टेक इन फर्स्ट अटेम्प्ट. तो प्लीज राइट दोज मिस्टेक्स कि क्या क्या गलतियां की हैं, क्या क्या गलतियां की हैं. आई यूज्ड टू टेल फ्रॉम 10 years बैक कि उनकी मिस्टेक को लिखो. तो ये कर लिया. अब थर्ड राउंड में अब फिर वो सवाल बच जाएंगे जो आपको आते ही नहीं है. अब सिर्फ वो सवाल बच गए जो आते ही नहीं है. मे बी 10%, 20%, 30% एंड व्हाट्सएवर. प्लीज मार्क दीज क्वेश्चंस जो थर्ड राउंड वाले हैं, एंड रीड द सॉल्यूशंस, रेफर द नोट्स, लर्न द कॉन्सेप्ट्स and underline those solutions, underline these questions. जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में हो गए उनको एग्जाम के पहले रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन जो थर्ड राउंड वाले जो बच गए, दे रिक्वायर द रिवीजन बिफोर एग्जाम ऑल्सो. सो यू मार्क दीज क्वेश्चंस विच आर फॉर द थर्ड राउंड. रिवाइज देम बिफोर यू गो इनटू द एग्जामिनेशन. प्लीज डू फॉलो दिस प्रैक्टिस. जो सेकेंड राउंड के टाइम पर आपने जो एरर की थी, दोज पॉइंट्स यू हैव नोटेड डाउन कि व्हाट मिस्टेक, व्हाट एरर यू हैव डन, उनको आपने लिख लिया है और उसको जाकर के याद रखो. एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट, व्हेन यू सॉल्व सॉइल मैकेनिक्स, व्हेन यू सॉल्व स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्लीज डू नॉट मेक दोज मिस्टेक्स व्हिच यू मेड इन सेकेंड राउंड. राइट. तो बाद में से थर्ड राउंड रिवाइज करना है बस बिफोर एग्जाम. So this approach you have to do in the solving PYQ. ठीक है. फर्स्ट अप्रोच गेट की स्पीड को मेंटेन करना है. सेकेंड अप्रोच में उनको करना है जो गलतियां की हैं. और थर्ड अप्रोच में which you are not able to solve, learn their answer and solution and mark them for revision. Do this task. So this is that. Revision. I have already told कि revision करके टेस्ट दो, PYQ करो. लेकिन अगर पहले से पढ़ रहा है PYQ करो, और जो फॉर्मूला भूले PYQ में नहीं आ रहा है उनको रिवाइज करो. वर्कबुक यू हैव अटेम्प्टेड, यू हैव डन इन क्लास, तो वो रिवीजन का हिस्सा है. दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड इन योर नोट्स. उनको रिवाइज कर जाओ. आपके अपने क्लास नोट सफिशिएंट है. दोज आर एनफ. द लास्ट सोर्स कम्स द टेस्ट सीरीज. सो टेस्ट सीरीज बिकम्स वेरी एसेंशियल. जितने नंबर ऑफ टेस्ट दे सकते हैं आप उतने दे दीजिए. एंड सेम अप्रोच यू हैव टू फॉलो. फर्स्ट अप्रोच में जाइए, टेस्ट दीजिए, सबमिट कर दिया टेस्ट. फिर जो गलत हो गए या जो नहीं बने थे उनको दोबारा अटेम्प्ट करो, और उसमें से जो मिस्टेक कर रहे हो वो लिखो, और जो नहीं आ रहे हैं उनको मार्क करो, बुक मार्क करके रखो, और उनको रिवाइज करो. सो दिस इज द सेम अप्रोच इन PYQ एंड सेम इन द टेस्ट सीरीज. सो दिस यू हैव टू डू इट. राइट. इससे ज्यादा टाइम नहीं है. क्लास नोट्स, फिर रिवीजन करना है, सिलेबस को कवर करना है, PYQ करना है, एंड टेस्ट सीरीज लिखना है. अभी कुछ एक्स्ट्रा करने का टाइम नहीं है, इतना करने की जरूरत है. दिस इज एसेंशियल. गेट तक आप गेट दो. डू नॉट बॉदर अबाउट IES. इफ यू हैव ज्वाइंड गेट प्लस ESE प्लस स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, तो एक्सटेंशन मिल जाएगा. स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस वाला सेक्शन आप बाद में अटेम्प्ट करना लेना चाहते हैं तो बाद में ले लेना. सेक्शंस, रिकॉर्डेड सेक्शंस. प्रीलिम्स का जो पार्ट है गेट नॉन टेक का, इफ यू आर लीविंग दिल्ली, यू वांट टू अटेंड नाउ, फाइन. ऑनलाइन में है या ऑफलाइन में है, आप गेट के बाद लेना चाहते हो गेट के बाद मिल जाएगा. वी हैव मेड अ प्रोविजन कि आप प्रीलिम्स का जनरल स्टडीज गेट के बाद करना चाहते हैं तो गेट के बाद. नाउ आफ्टर गेट व्हाट टू बी डन? द नेक्स्ट 3 months, not 4 months, you have the 4 months टाइम. 16th February से लेकर के कब तक? 8th of June. 8 को है 10 को है? 8th June. So this is almost 4 months से थोड़ा कम है. 3.5 months, 3.75 months, maybe around 100 plus days. 100 plus days. अब 100 plus days है और प्री और मेंस के बीच में सिर्फ 70 days है, 60 days है. तो 60 days are not enough for the mains. So here the approach will be pre plus mains.
प्री प्लस मेंस। प्री में जीएस, मेंस में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, दोनों को लेके चलते हैं टेक्निकल में, बट सब्जेक्टिव इज मेंस एंड ऑब्जेक्टिव इज प्रीलिम्स। तो सब्जेक्टिव पर फोकस रखिए फर्स्ट 2 to 2.5 मंथ्स, 2 मंथ से 2.5 मंथ्स शुरू के सब्जेक्टिव पे पूरा फोकस होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो गेट के लिए भी कर रहे हो, और लास्ट के 1 महीने फिर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लेंगे। सो 2-2.5 महीने जस्ट आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फोकस ऑन द मेंस। तो मेंस का मेजॉरिटी सेक्शन आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर 10-15% बच गया तो इसको गेट के फॉर प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद कर लेना। एंड जीएस वाला सेक्शन के जो 8 सेक्शंस हैं विच आर नॉट कॉमन विद द गेट सिलेबस, इनको लेके चलना है। सो दिस अप्रोच, कन्वेंशनल प्रैक्टिस विल हेल्प यू इन प्रीलिम्स ऑल्सो। कन्वेंशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस का सब सेक्शन प्रीलिम्स में आ जाता है। सो दिस कन्वेंशनल प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू कन्वेंशनल की करना है। इफ यू कैन सॉल्व द इंजीनियरिंग सर्विसेज लास्ट 15 years, it will be very good. If you can solve also civil service last 7-8 years, will be much better. तो इसको करो। मेडीजी में भी मेंस का कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम 24 फरवरी से स्टार्ट होगा। दिस वी हैव डिसाइडेड फ्रॉम 24 फरवरी। 16 को एग्जाम हो जाएगा, 1 हफ्ते बाद स्टार्ट हो रहा है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चलेगी 3 मार्च से लेकर के मई एंड तक प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चलेगी, और मेंस की टेस्ट सीरीज 10 जून से अगस्त 10 तक चलेगी। सो देयर विल बी मेंस टेस्ट सीरीज आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आफ्टर गेट एग्जामिनेशन, बट मेंस का जो कोर्स है वो ईएस के प्रीलिम्स के पहले हो जाएगा, क्योंकि इफ वी वेट फॉर द आफ्टर प्रीलिम्स इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कवर अप सिलेबस। ठीक है, फॉर दिस इज व्हाट वी हैव डिजाइन्ड। स्टेप बाय स्टेप चलिए, देयर इज इनफ टाइम, focus on your notes, you can rely on the MEDG notes, and many of the selected candidates have done this process. You can do it. So thank you everyone, I have finished the topic of today's discussion. कोई सवाल हो तो पूछिए। कोई क्वेश्चन है? नहीं है दिमाग में? क्यों बालक? नहीं है? किसी की कोई? हाँ पूछो। बैठे बैठे पूछिए, बैठे बैठे। हाँ, माइक ऑन तो कर दो, माइक तो पकड़ा दिया, ऑन नहीं करा आपने। हाँ पूछ लो, मुझे सुनाई दे रहा है। के बाद मतलब जीएस के भी लेक्चर्स करने हैं और फिर कन्वेंशनल के भी करने हैं, तो वो और प्लस मेंस का भी स्टडी बुक मैनेज करना है। देखो, इनका सवाल यह है कि प्रीलिम्स के गेट के एग्जाम के बाद एक तो प्री का जीएस करना है, और साथ ही साथ मेंस के भी लेक्चर करना है, और उसके प्रैक्टिस भी करनी है, तो कैसे हो पाएगा? तो मेरा मानना यह है कि जो मेंस के जो क्लासेस होंगी उनका ड्यूरेशन छोटा होगा, वो 3 to 4 hours का होगा। दैट विल नॉट बी 6 hours लाइक नाउ, तो उसका ड्यूरेशन कम होगा। और जो टेक्निकल का जो नॉन टेक्निकल सेक्शन होगा जीएस वाला, उसका भी ड्यूरेशन कम होगा, उसका भी 3 hours के आसपास ही होगा। सो देयर विल बी 3 + 4 मतलब 7 hours इन अ डे, दोज हु आर अटेंडिंग बोथ। तो इतना तो आप वैसे भी पढ़ रहे हो। मेंस के क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस होनी है कन्वेंशनल में। दी मेंस के जो बैच होते हैं कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम ही नाम है, उसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, डिस्कसिंग डाउट, टीचर्स आर टीचिंग एडवांस कॉन्सेप्ट्स, और घर में जाकर के जितना भी टाइम बच रहा है आपको 2 काम करने हैं। एक तो आपको पीवाईक्यू मेंस के सॉल्व करना है, और दूसरा पीवाईक्यू प्रीलिम्स के जीएस के सॉल्व करना है, जीएस का रिवीजन करना है। सो दैट 3-4 hours यू कैन कीप ऑन। For this way you can follow. लास्ट के जब प्रीलिम्स के पहले 1 महीने पहले मेंस वाले प्रैक्टिस बंद कर देंगे, एंड यू विल फुल्ली फोकस ऑन द प्रीलिम्स प्रैक्टिस। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? दे दो माइक, पूछो। मेंस के कन्वेंशनल क्वेश्चंस जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, क्या अभी उनको गेट के प्रिपरेशन के टाइम पे छोड़ सकते हैं? मेंस के कन्वेंशनल क्वेश्चन गेट की प्रिपरेशन में छोड़ दें, आप ये कह रहे हैं ना? यस सर। देखो, अगर टाइम परमिट करता है तो करना एडवाइजेबल है, लेकिन अगर टाइम परमिट नहीं करता तो पहले गेट के पीवाईक्यू करना जरूरी है। ईएस के मेंस के क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करते हैं,
लेकिन अगर टाइम है नहीं, उतना सॉल्व नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है, पूछो। डोंट हेजिटेट, आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। ऑल डन। सो थैंक यू एवरीवन एंड आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू। और ये इस तरह की सिलेबस की स्पेलिंग गलत करी किसने लोगों ने नोटिस किया था? ओ माय गॉड, बट नोबडी पॉइंटेड आउट। अब समझ सकता हूं मैं कि देखते रहो कि कौन ले रहा है, कहोगे कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच।